ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Thank you. So we are studying from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, verse number 25, which is a very famous verse. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti hritkarna rasayana katha tadjoshanad ashvavarga vartamani Shraddharatir bhaktir anukramishyati Satam prasangan mama virya samvido Bhavanti hritkarna rasayana katha Tadjoshanad apavarga vartamani Shraddharatir bhaktir anukramishyati Satam prasangan mama virya samvido Bhavanti hritkarna rasayana katha Tadjoshanadashvapavarga vartamani Shraddharatir bhaktir anukramishyati. Bhavanti hritkarna rasayana katha Tadjoshanadashvapavarga vartamani Shraddharatir bhaktir anukramishyati. Satam prasangan mama virya samvido Bhavanti hritkarna rasayana katha Shraddharatir bhaktir anukramishyati. Mataji. Satam prasangan mama virya samvido Bhavanti hritkarna rasayana katha Tadjoshanadashvapavarga vartamani Shraddharatir bhaktir anukramishyati. Mataji, Vaishnavis, बोलना चाहे? Satam prasangan mama virya samvido Bhavanti hritkarna rasayana katha Tadjoshanadashvapavarga vartamani Shraddharatir bhaktir anukramishyati. You know, word meaning, translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Satam, of pure devotees. Prasangat, through the association. Mama, my. Virya, wonderful activities. Samvidaha, by discussion of. Bhavanti, become. Hrita, to the heart. Karna, to the ear. Rasanyanaha, pleasing. Katha, the stories. Tat, of that. Joshanad, by cultivation. Ashu, quickly. Apavarga, of liberation. Vartamani, on the path. Shraddha, firm faith. Rati, attraction. Bhakti, devotion. Anukramishyati, should follow in order. Translation.
In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotion service begin. So first part of our part is about how by being an association of the impersonalist, one cannot really develop attraction for the Lord. But then Sri Prabhupada also highlights, to understand the personal activities of the Lord, one has to seek association of devotees. And by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path to liberation is open and he is freed. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Association with devotees means association with the Lord. The devotee who makes the association develops the consciousness for rendering service to the Lord. And then being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Subhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Neshavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Shri Vishakhanvitascha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Shabadaya Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshanarine. Hukam Karoti Vachalam Pangum Langai Tegirim, Yatripadam Hammande Shri Guru Yatayam, Paramananda Vadam Shri Chaitanya. हरे कृष्णा. हिंदी ओके. कहीं पूछना होता है मेरे ये मेरा अगला सवाल था. हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो. ठीक है हिंदी बोलते हैं. थैंक यू सत्यमूर्ति प्रभु फॉर इनवाइटिंग मी. ही इज एक्चुअली मैं देखो ही इज पक्का साधु. या सो किसी भी जगह पे ना भक्ति फैलती है जब साधु अच्छा मिल जाता है ना तो भक्ति फैलती है. वहाँ स्वादु आता है ना तो तब दिक्कत हो जाती है. सो ये ऑफ कोर्स ही इज डूइंग स्वादु पदे पदे बट ही इज साधु. तो साधु एक जगह किसी भी जगह पे भक्ति फैलती है बिकॉज ऑफ वन थिंग. इनफैक्ट किसी भी जगह पे ना कुछ भी अगर फैलता है इट इज बिकॉज ऑफ लीडरशिप. इफ देयर इज लीडरशिप क्राइसिस उसके बाद से क्राइसिस होगा. फूड क्राइसिस, लैंड क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, ये क्राइसिस वो क्राइसिस. लेकिन लीडर अच्छा आ जाता है तो फिर सारा क्राइसिस दूर हो जाता है. सो इसी कि वी हैव गॉट लीडर्स लाइक सदायोगी प्रभु ऑल्सो, भागवत श्रवण प्रभु, राइट. भागवत श्रवण प्रभु यू केम ऑल द वे फ्रॉम धारवाड़. This is amazing. Very near. Still you came. Thank you very much for coming and blessing. So यहाँ पर इतने अच्छे वैष्णवास हैं. So all of you are getting association of devotees. Yeah. और सबसे जरूरी यही है association of devotees. That's most important. That's why we came. To give his association. He has come. Just see, he's so kind. कलयुग है ना. कलयुग में क्या होता है सब काम उल्टा होता है. वैसे प्यासों को जाना चाहिए कुएं के प्यास, लेकिन कलयुग है तो इसे कुएं आते हैं प्यासों के पास. सो इज बीइंग वेरी काइंड सदायोगी प्रभु. सो साधु संग जो है बहुत अधिक आवश्यक है. या संगति से, देखिए सारा खेल संगति का है. इच्छाएं किससे आती है? संगति से आती है. अच्छी इच्छाएं भी आती है तो संगति से आती है. गलत इच्छाएं भी आती है तो किससे आती है? संगति से आती है. और इच्छाएं ही अल्टीमेटली लाइफ को दिशा देती हैं, लेकिन इच्छाएं तो संगति से आती है. तो इसे संगति पे बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए. आई वुड स्टार्ट विद लव स्टोरी. पसंद है आपको? लव स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता? तो आप लोग संत लोग हो, मैं तो संत नहीं हूँ. मेरे को लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती है.
तो ये लव स्टोरी है मल के कीड़े की और मधुमक्खी की। जी प्रभु जी, हाउ इज इट पॉसिबल? कहाँ स्टूल वॉर्म और कहाँ मधुमक्खी, दोनों का प्यार कैसे हो सकता है? बट इन दिस वर्ल्ड लव इज ब्लाइंड। तो प्यार हो गया दोनों का। लेकिन आप मधुमक्खी को लगता था मेरी शादी होगी, मैं किस जगह जाके बसूंगी, कितना गंदा ससुराल होगा मेरा, कहाँ जाके हम। और मल का कीड़ा कहता था क्यों, अच्छा तो है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है मेरा, रोज नई स्टोरी ऐड होती है उसके ऊपर, फ्रेश पिज्जाज गिरते हैं ऊपर से। क्या तेरे गंदे पिज्जा, कौन खाएगा तेरे गंदे पिज्जा, छी। लेकिन लगता था पता नहीं शादी करूंगी, प्यार तो कर लिया मैंने इससे, लेकिन मेरा घर बसेगा, कहाँ जाऊंगी मैं। और ये कहता पता नहीं ये क्यों कहती रहती है कि यहाँ नहीं बसी, इतनी बढ़िया जगह तो है ये। तो लेकिन एक दिन आता है हर व्यक्ति जो अपनी प्रियतम की बात सुनता है, और वो है 14 फरवरी। 14 फरवरी आया, जानते हैं दीपावली का दिन होता है ना। तो 14 फरवरी को जो है मधुमक्खी ने बोला चलो कहीं बाहर चलते हैं, चलो घूम करके आते हैं। बाहर कहाँ घूमने जाएंगे, इतना बढ़िया है तो सही, यहाँ पर अपने यहीं पे रहते हैं, मेरा घर ही मेरा रेस्टोरेंट है, फ्री पिज्जा गिरी रहे हैं ऊपर से, तो खाएंगे पिज्जा हम लोग। छी गंदे पिज्जा तेरे, कौन है गंदे पिज्जा तेरे। तो लेकिन 14 फरवरी को बात मानी पड़ी, तो मैंने कहा ठीक है जाना तो पड़ेगा मेरे को, क्या करूँ। तो कमरे के अंदर गया और थोड़ा सा मल लिया और नाक के अंदर ठूस लिया उसने कि इस खुशबू को मैं मिस ना करूँ। तो मधुमक्खी ने इसको उठाया, उठा करके फूलों पे रखा, तो सूंघो इनको। तो उसने सूंघा, अरे हाँ सेम है, तो सेम ही है मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वही है, सेम ही। मधुमक्खी ने सोचा कहाँ ये फूलों की खुशबू और कहाँ वो मल की बदबू, कह रहा सेम है, दोबारा सूंघ, दोबारा सूंघ, सेम है, सेम है, सेम कैसे हो सकता है। तो मधुमक्खी ने झांक के देखा, गंदा आदमी नाक के अंदर ठूस के आया हुआ सारा मल वगैरह, गंदा नहीं खाना हो तो मधुमक्खी ने उसको उठाया, उठा करके स्विमिंग पूल में लेके गई, उसको थोड़ा स्विमिंग कराई उसको, कहता अब चलो अब जाकर के सूंघते। अब सूंघा उसने, अरे बेहोश ही हो गया वो। फिर मधुमक्खी ने उठाया, उठ उठ, कैसा लगा, अरे क्या खुशबू है। उसके बाद मधुमक्खी ने अपनी जीभ में थोड़ा सा शहद निकाला फूल से, अपनी जीभ बाहर निकाल, उस जीभ पे शहद रखा, अरे शहद खा के तो वो पूरा लमलेट ही हो गया वो। फिर उसको उठाया, कहते हाँ कैसा लगा, अरे अल्टीमेट अल्टीमेट। मधुमक्खी ने बोला यहाँ के लिए तो बोला करती थी मैं, आजा यहाँ पर, आजा यहाँ घर बसाएंगे हम लोग, और तू कहता था हम वहीं पे रहेंगे, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट था, गंदा था मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। हाँ वाकई में वो तो बहुत बेकार जगह, ये तो बहुत ही अच्छा है। एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी, लव स्टोरी। तो ये लव स्टोरी किसकी है? लव स्टोरी हम लोगों की लाइफ की भी है। एक दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि संसार में लगे हुए हैं, वो है मल का कीड़ा। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना चाहते, भक्ति में नहीं आना चाहते, बिकॉज पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, क्या ये पता नहीं क्या है ये। डिवोटीज बुलाते भी तो भी नहीं आते, बहाने भी देंगे कि वेल क्या है वो वॉशिंग मशीन लगानी है, वो तो हम आ नहीं पाएंगे, बच्चों के एग्जाम्स हैं। सो लोग बहाने मारते रहते हैं, डिवोटीज फिर भी उनको बुलाते रहते हैं, ये फिर भी बहाने मारते रहते हैं। लेकिन कभी कोई विशेष उत्सव होते हैं तो उस पर लोग आ ही जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गया, लोग उस पर आ ही जाते हैं, हरे कृष्ण माता जी, तो लोग उस पर आ ही जाते हैं। आते हैं तो थोड़ा सा अपना साथ लेके भी आते हैं, क्या है क्या है, कुछ भी करते रहते हैं ये लोग, ये हरे कृष्णा वाले। लेकिन वहां पर हरि नाम में जो उसमें धुल जाते हैं पूरे, तो लगता है अरे वाह क्या बात है भाई। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति भक्तों की दुनिया में आकर के भक्त बन जाता है। अब ये जो मल का कीड़ा था और मधुमक्खी थी, दोनों की शादी हुई, लेकिन मल का कीड़ा ही रहा, मधुमक्खी थी। हालांकि दोनों साथ रहते हैं, लेकिन वो मल का कीड़ा ही है। लेकिन हमारी लाइफ में जब डिवोटी आते हैं, डिवोटीज की एसोसिएशन आती है, तो फिर मल का कीड़ा बन जाता है मधुमक्खी। दैट मीन्स अ नॉन डिवोटी बिकम्स अ डिवोटी, और फिर उस डिवोटी से मिलकर के फिर और लोग मिलते हैं धीरे धीरे करके। इन दिस वे दिस चेन रिएक्शन goes on and on and on। तो धारवाड़ हो, हुगली हो, और लो जी सब के सब हो गए भगत। कैसे? चेन रिएक्शन। सो भक्ति ट्रेवल्स फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर हार्ट टू अनदर हार्ट टू अनदर हार्ट। तो हम चाहे कितने बहाने दें, पर बहाना देना असल में अपना नुकसान करना ही होता है। हमारे एक बहुत ही महान आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत
सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो एक कहानी सुनाते हैं उपाख्यान उपदेश में। एक व्यक्ति था, उसको ना बहुत भूख लगी हुई थी। अब भूख लगने में ना एक तरीका होता है कि ना पेट को दबा दो तो थोड़ी भूख शांत हो जाती है। ऐसे कई गरीब लोग क्या करते हैं, गीला कपड़ा पेट में बांध लेते हैं जब भूख लगी होती है, तो उससे भूख थोड़ी शांत हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति था, उसने उसके सामने एक पिलर था, पिलर को उसने पकड़ कर पेट को दबाया, तो उससे उसको भूख को आराम मिला। कहीं वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, उसके हाथ में था इडली वड़ा डोसा सांभर। कहता भैया जी आ जाओ खा लो। तो ये जिसके हाथ इसके ऐसे बंधे, उसने कहा नहीं वो क्या है, मेरे हाथ बिजी है ना, इसलिए मैं ये इडली वड़ा डोसा सांभर नहीं खा पाऊंगा। कहता अरे आ जाओ भैया, से भूख मुझे नहीं, माय हैंड्स आर बिजी यू नो। ये आदमी समझदार है कि बेवकूफ है? हाँ बेवकूफ है। अरे तू इडली वड़ा डोसा सांभर खाना, तेरा पेट की भूख मिट जाएगी। ये क्या तूने पेट दबा कर रखा हुआ है? उस तरह से संसार के लोग भी स्टॉप गैप सॉल्यूशंस में लगे रहते हैं। उनको भक्त बताते रहेंगे, अरे आ जाइए आइए आप कल्याण हो जाएगा, मन की शांति मिलेगी। नहीं जी हम बिजी हैं, जस्ट सी माय हैंड्स बिजी। बिजी फॉर व्हाट झंडू माम? तो इसीलिए एक टिपिकल व्यक्ति नहीं आता, लेकिन भक्त जो होते हैं वो तो धीरे धीरे करके व्यक्ति को भक्ति में लेकर के आते हैं। यस, और ये इनके प्रकार भक्तों का संग मिल जाए भक्ति चालू। जैसे चलो भक्ति समाज के जीवन में ऐसा हुआ कि ना, अब अंग्रेजों का समय, अंग्रेजों को लगता था ये जो व्यक्ति है ना, ये हमारे खिलाफ लगता है कोई षड्यंत्र रच रहा है। इसके बाद सारे इसके पास इसके मठ में सारे जवान लोग ही रहते हैं, अगर इसने आंदोलन खड़ा कर दिया तो उन्होंने क्या किया, अपने एक ऑफिसर को भेजा कि जाके ना थोड़ा देख कर क्या स्पाई करके आए, ऐसा तो नहीं हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना है। तो उसने अपना हेड शेव करा करके, शिखा विखा रख के, धोती वोती बांध करके वो क्लास में आके बैठ गया। वो क्लास में आके बैठा, कथा सुनी। कथा सुनते सुनते वो इतना गुम हो गया, भूल गया कि वो यहाँ जासूसी करने के लिए आया हुआ है। सुनता ही रह गया, वो सुनता ही रह गया। उसको लगा अरे भाई मैं क्या जासूसी कर रहा हूँ अंग्रेजों के लिए, सामने मेरे गुरु मिल गए मेरे को भाई। उसने वहीं का वहीं रिजाइन किया, ही जॉइंड श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज। वाओ। सेम हैपेंड विद सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के घर में 10 साल तक श्रील भक्ति महाराज ने जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भेजा, 10 साल तक। एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट सुभाष चंद्र बोस ने सोचा हुआ था अगर मैंने आईएनए नहीं बना रहा होता ना, मैं I would have joined him. I would have joined श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज. He was so much impressed. So association से ही जीवन हमारा बदलता है। ऐसे कई लोग हुए, प्रभुपाद जी के संग में तो कितने ही आए, उनका जीवन बदला just because of the association. There was one lady, she was very adamant, मैं कुछ हो जाए मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगी। देखती हूँ कैसे कराते हैं हरे कृष्णा मेरे से। डिवोटी बोला करते देखो हरे कृष्णा करेंगे आपका मन को शांति मिलेगी, आप खुश रहेंगे, आप आनंद में जीवन रहेगा। नहीं करूंगी। उसको फाइनली डिवोटीज है इस्कॉन मायापुर लेकर के आए। इस्कॉन मायापुर में भगवान के दर्शन कराए। शी वाज रियली ओवरवेल्म्ड और उसको लगा कि ना भक्ति करनी चाहिए, लेकिन नहीं मेरे को हरे कृष्णा नहीं करना है मेरे को। तो प्रभुपाद जी ना उसके बाद मायापुर में थे। तो प्रभुपाद जी ने अभी दिस वाज इंग्लिश लेडी होती है, बड़ी दृढ़ होती है। तो प्रभुपाद जी बोला श्री प्रभुपाद ये अमेरिका से हैं लेकिन ना हरे कृष्णा नहीं करती हैं। प्रभुपाद ने कहा सुखी। प्रभु ने कहा कुछ ना राधा माधव जी का महाप्रसाद रसगुल्ला प्रसाद लेकर के आओ। तो प्रभुपाद ने रसगुल्ला खिलाया। और अमेरिकन ने कभी रसगुल्ला खाया नहीं, रसगुल्ला खाया। प्रभुपाद ने कहा कैसा लगा? दैट्स अमेजिंग, मैंने तो आज तक ऐसी स्वीट कभी खाई नहीं। उसको प्रभुपाद ने कहा गिव हर 2 more, उसको 2 और दियो। 2 और खा गई वो। उसको 2 और दियो, 2 और खा गई वो। कैसा लगा? इट इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग। प्रभुपाद ने कहा दिस इज वेरी स्वीट राइट? ओके यस दिस इज सो स्वीट। प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग हरे कृष्णा इज इवन स्वीटर देन दिस, वुड यू लाइक टू चैंट हरे कृष्णा? ही सेड यस स्वामी जी, आई विल चैंट हरे कृष्णा। तो एसोसिएशन जो होती है ना, ये तो मतलब बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा दे, ऐसी शक्ति होती है एसोसिएशन के अंदर। एसोसिएशन इज रियली हार्ड ट्रांसफॉर्मिंग। तो ऐसे ऐसे लोग भी मतलब ट्रांसफॉर्म हो गए जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते ये भी भक्त बन सकता है क्या? यस। तो एसोसिएशन हमारे जीवन में करती क्या है? ये हमें अपलिफ्ट करती है, हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है एसोसिएशन। जैसा लोग कई लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे अगर आप मान लो न्यूयॉर्क चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ जहाँ स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, आपको लगेगा अरे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट में जा रहे होगे तो बिल्डिंग ऐसी नजर आती है, छोटी छोटी नजर आती है।
तो बिल्डिंग छोटी हो गई क्या? बिल्डिंग तो उतनी की उतनी है, लेकिन आपका ऑल्टीट्यूड ऊंचा हो गया। उसी तरह से व्हेन वी हैव स्पिरिचुअल एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन, उसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस रेज हो जाती है। कॉन्शियसनेस रेज होने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम हालांकि भली होती है, लेकिन फिर भी दिखती कैसी है? छोटी छोटी दिखती है। ऐसे नहीं डिवोटी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, होती है, डिवोटी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम होते हुए भी बंदा सोचता है इट्स ओके, इट्स ओके। सो डिवोटीज एसोसिएशन में आकर के वी बिकम मोर रिलैक्स्ड, यस, बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज रेज्ड, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, क्या चींटी चांद को छू सकती है? क्या चींटी चांद को छू सकती है? नहीं ना। अच्छा, लेकिन अगर वो शिव जी के सर पे बैठी हो तो? हाँ, क्योंकि चंद्रमौली कौन है? शिव जी, यस। तो वैसे तो चींटी चांद को नहीं छू सकती, लेकिन परम वैष्णव शिव जी के अगर सर पे बैठी हो तो फिर छू सकती है। उस तरह से हम भी कृष्ण को नहीं छू सकते। भगवान हमारे हर तरह से हमारी हद के परे हैं, लेकिन अगर भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा, then even which is impossible, that means to get Krishna is impossible, that becomes possible by devotees association. भक्तों के संग में पॉसिबल है वास्तव में। मैं देखा पुराणों में एक कथा आती है, एक चींटी थी, सॉरी एक मधुमक्खी थी, वो एक कमल के अंदर बंद हो गई, और क्योंकि हर रोज 1000 कमल चढ़ाया करती थी पार्वती मैया शिव जी को, तो जब उन्होंने कमल चढ़ाए और हर रोज पुराने कमल हुआ करती थी, उनको गंगा में डाल दिया करती थी। तो ये जो मधुमक्खी जो कि कमल के अंदर बंद हो गई थी, ये शिव जी के चरणों में अर्पित हो गई, और उसके बाद फिर गंगा मैया में इसका स्नान भी हो गया, वहीं की वहीं इसको चतुर्भुज प्राप्त हुआ और बैकुंठ चली गई। हाउ कम? बाय डिवोटी एसोसिएशन। एक डिवोटी एसोसिएशन पार्वती मैया, दूसरी डिवोटी एसोसिएशन शिव जी। सो डिवोटी एसोसिएशन जो है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तव में इट इज वेरी रिलिशिंग। हरि कथा जो है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, रिलिशिंग हो जाती है व्हेन वी हैव डिवोटीज एसोसिएशन। जैसे साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छे वैष्णव, उनका नाम था पुंदानम। किसने नाम सुना पुंदानम का? पुंदानम, यस, महान वैष्णव थे, और वो शिवजी पार्वती का एक मंदिर था, वहां पर जा करके भागवतम का एक वर्जन है नारायणी में, उस पर कथा करते थे। तो 10th कैंटो में उसमें 60th चैप्टर आता है, 60वां अध्याय है, कृष्णा टीजिंग रुक्मणी। तो एक चैप्टर रिसाइट करेंगे, उसके बाद बुक मार्क लेंगे, बुक मार्क को उसके आखिर में रखेंगे कि कल 61st चैप्टर होगा। तो 60th चैप्टर जो है कृष्णा टीजिंग रुक्मणी, ये उन्होंने रिसाइट किया, उसके बाद फिर उसके आखिर में लगा दिया बुक मार्क। अगले दिन आए, देखा बुक मार्क जो है 60th के पहले लगा हुआ है। अरे बुक मार्क तो मैंने 60th के बाद किया था, ये 60th के पहले कैसे आ गया? चलो कोई बात नहीं, कथा दोबारा कर लेते हैं। उन्होंने फिर से उसको रिसाइट किया, फिर से उसके आखिर में लगा दिया उन्होंने, आखिर में लगाया। अगले दिन फिर आए, देखा ये बुक मार्क फिर यहाँ लगा हुआ है, ये करता कौन है ये? क्योंकि जब वो जाया करते थे ना, तो वो खुद उसको लॉक करते थे, तो कौन अंदर आता है, कौन चेंज करता है बुक मार्क के? तो सोचा आज मैं देखूंगा ये दरवाजे के छेद से कौन ये काम करता है। तो उन्होंने देखा छेद से पार्वती मैया शिवजी वहां पर हैं, और पार्वती मैया कर रही है बुक मार्क को लेकर के 60th के पहले लगा रही है। तो शिवजी बोल रहे हैं, अरे तुम उसको आगे बढ़ने दो ना, 2 बार कर तो चुका है वो कथा इसमें, कृष्णा टीजिंग रुक्मणी। तो पार्वती मैया बोली, लेकिन पुंदानम इतनी सुंदर कथा करता है ना, मेरे को बार बार ये 60th चैप्टर सुनने का मन करता है। इसीलिए शिवजी ने बोला, अरे मैं कर दूंगा, 60th चैप्टर है, तुमको बहुत पसंद है ना, मैं 60th चैप्टर तुम्हारे लिए मैं रिसाइट कर दूंगा, उस बेचारे को तो आगे जाने दो। तो पार्वती मैया ने बोला, आप बुरा मत मानना, लेकिन जितनी अच्छी कथा पुंदानम करता है ना, आप भी नहीं कर सकते। तो उनका ठीक है भाई, अब वाइफ हो ना, कहीं हस्बैंड की बात कभी पसंद नहीं आती, भले ही इज अ परमहंसा, शिवजी तो परमहंसा, लेकिन पत्नी जो है पति से कभी संतुष्ट होने के लिए बेकार है। आपसे है ना पुंदानम, वेरी गुड रिसाइटर, यस। जब पुंदानम ने ये देखा कि ना पार्वती मैया को मतलब ये 60th चैप्टर इतना अच्छा लग रहा है, सो एवरी डे ही वुड डू, कि जब तक पार्वती मैया 60th चैप्टर में रखती रहेंगी, मैं भी 60th चैप्टर रिसाइट बार बार करता रहूंगा। अब देखा जाए एक ही स्टोरी तो है, कृष्णा टीजिंग रुक्मणी, कृष्णा बोल रहे हैं देख लो तुम किसी और से विवाह कर सकती हो, जरासंध भी है,
शिशुपाल भी है, लोग बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो डरपोक हूँ, यहाँ डर के बैठा हुआ हूँ, द्वारका जो चारों समुद्र से घिरी हुई है, तो मेरे से शादी कर लेनी चाहिए, अभी देरी नहीं हुई है। देरी क्या, वो पोते हो चुके उनके, देरी नहीं हुई। वो उसको ये सारा रिसाइटेशन। एंड देन रुक्मिणी जी जो है, शी ट्रांसलेट्स एवरीथिंग ऑफ कृष्णा इनटू ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। क्या वहाँ बोल रहे हैं कि वास्तव में आप राजा नहीं हैं, ये बड़े बड़े राजा हैं, और मुझे आपसे विवाह नहीं करना चाहिए था। वास्तव में आपसे विवाह में कैसे कर सकती हूँ, आप भगवान हैं, आप तो प्रभु हैं, आई एम जस्ट लिविंग एंटिटी। और आपने कहा राजा की बात, इन राजाओं से शादी, ये राजा लोग राजा नहीं है। इस दुनिया में प्रकृति के 3 गुण राजा हैं, वो सबको नचाते हैं असल में। और गुणों के राजा कौन, गुणाधीश कृष्ण आप हैं, इसलिए असली राजा तो आप ही हैं। तो दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। So she was liking this so much, Parvati Maiya, that she kept on hearing it again and again and again. Wow. तो इसलिए भक्तों के संग में आकर के ही स्क्रिप्चर्स क्लियर होते हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है क्या। रिसेंटली आई वाज इन जेएनयू हमारा प्रोग्राम था, तो हमारे से पहले ना कई सारे और प्रोफेसर भी थे, उनको भी बोला गया था भगवद गीता भी बोलने के लिए। मतलब हम दंग रह गए, इससे ज्यादा बोरियत भरी बिना सरपाओं की भगवद गीता की विश्लेषण हो ही नहीं सकती। मतलब रिकॉर्ड तोड़ मीनिंगलेस ट्रांसलेशंस, मीनिंगलेस प्रेजेंटेशंस। उस वक्त हमने कहा माय गॉड, वी आर सेव्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। और एक्चुअली बताऊं, मैंने भी प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ने से पहले 8 डिफरेंट वर्जन्स मैंने पढ़े थे भगवद गीता के। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग थोड़ा लगता था, हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है, बट इट वाज एट द मैक्स इंटेलेक्चुअली वेरी स्टिमुलेटिंग बस। बट स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन कैसे आता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आता है व्हेन वी हैव डिवोटी अंडरस्टैंडिंग। भक्त संग में आकर के तो जाके गीता क्लियर होती है। अदरवाइज पीपल आर स्पीकिंग एनीथिंग एंड मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं गीता से, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो निराकार है जो कृष्ण के अंदर से बैठ के बोल रहा है, लेकिन भाई निराकार बैठ कैसे गया भाई, निराकार है वो तो। कुछ लोग बोलते हैं शिव बाबा हैं जो उनके अंदर से बैठ के बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब। क्यों शिव बाबा बाहर नहीं बैठ नहीं सकते क्या। भाई कृष्ण बोलते मैं घोड़ों को चारा खिला रहा हूँ, आप अर्जुन को गीता सुनाओ, क्यों सुनता ऐसा। वो उनको चेयर लगा दे, मैं आप बैठो, आप यहाँ बैठो, उनको गीता सुनाओ। नीलकमल की एक चेयर लगा दी, फेविकोल लगा करके, लो आप सुनाओ, अर्जुन गीता सुन ले शिव बाबा से। हो सकता है ये क्या अंदर बिठा करके, अंदर ये क्या होता है कि संडान हो जाएगा बाहर, कुछ भी मतलब। सो इसलिए ना भगवद गीता एक्चुअली गेट क्लियर्ड बाय डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों के संग में आकर के। एक समय नारद मुनि है ना, ये पढ़ा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। क्या लव मात्र अगर वो साधु संग करता है ना, उसको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान के पास कहता है, प्रभु ये लव मात्र साधु संग भला क्या होता है। तो भगवान ने बोला, तुमको जानना है ये लव मात्र साधु संग क्या होता है। हाँ जी। तो ऐसा करो, ये ना हुगली में एक घर है, वहाँ गमला है, गमले के नीचे ना वहाँ पर एक केंचुआ है, उस केंचुए से पूछ लो। केंचुए से, ठीक है, नारायण बोल रहे हैं तो भाई जाके पता करते हैं। नारायण नारायण पहुंचे, गमला हटाया, गमले के नीचे था केंचुआ। अरे केंचुए, ये लव मात्र साधु संग करो तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। केंचुए नारद मुनि को देखा और मर गया। कहते अरे तो बड़ा जानलेवा सवाल है, तो बंदे के प्राणी निकाले हैं। तो पहुंचे भगवान के पास, कहते नारायण नारायण, अरे प्रभु ये मैंने सवाल पूछा, उस सवाल सुन के तो केंचुआ मर ही गया हो। भगवान ने कहा अच्छा केंचुआ मर ही क्या। ओह, तो ऐसा करो, ये धारवाड़ में ना एक गौशाला है, वहां पर एक बछड़ा पैदा हुआ है, वो बछड़े से ना तुम जाके पता करो। बछड़ा मर गया तो गौ हत्या का पाप लग गया। भगवान ने कहा जाओ कोशिश करो। बछड़े से पूछा, ए बछड़े ये लव मात्र साधु संग करो उसका क्या लाभ होता है। बछड़े नारद मुनि को देखा, मर गया। तो अरे भाई, अब नारद मुनि की बुद्धि खराब हो गई। कहते ले भाई ये क्या सवाल है, ये ऐसा कातिलाना सवाल, बंदा सुन के मर जाए। तो पहुंचे भगवान, कहता है प्रभु ये क्या सवाल है, ये मतलब लोग मरे जा रहे हैं इनको सुन करके, केंचुआ मर गया, बछड़ा मर गया। तो भगवान ने बोला ओ अच्छा ऐसा क्या, ठीक है ऐसा करो, ये फला ना एक राजकुमार है, उससे पूछ करके आओ। ये तो नहीं मरेगा ना। भगवान ने कहा देखो क्या होता है, देखो। वो नारद मुनि गए, राजकुमार से पूछा, राजकुमार वो एक ना प्रश्न पूछना था। कहते हाँ पूछिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, तुमको पता है क्या। कहते हाँ पूछिए।
कि तुमको कुछ हो ना जाए बस। ये मतलब लव मात्र साधु संग कोई करता है ना, तो उसका लाभ क्या मिलता है ना? मुनि मैं नहीं मरा ना, वही तो धन्यवाद नारायण का, तुम नहीं मरे। आपका लव मात्र साधु संग जब मैंने किया, जब मैं केचुआ था तो मुझको बछड़े का शरीर मिला, बछड़े को लव मात्र साधु संग मिला तो मुझको आज वैष्णव परिवार में राजकुमार होने का मौका मिला, और अब मैं इस जन्म में भक्ति भजन करके भगवान के नाम बैकुंठ चला जाऊंगा। ये लाभ मिलता है अगर कोई लव मात्र साधु संग करता है तो। और देखिए हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये लोकल सेंटर वाला हमने क्यों खोले? ये सेंटर हम लोग क्यों खोलते हैं? साधु संग करने के लिए। नहीं तो हम लोग सब जाएं वृंदावन जाएं, हरे कृष्णा करें, बस दैट्स इट, प्रसाद दोवत का हो ही जाता हमारे लिए। ये क्यों बोलते हैं हमें सेंटर, ये सेंटर वो सेंटर? और डिवोटीज हैं अकेले लगे हुए हैं, तो हमारे सत्यमूर्ति वो अभी उनको साथ देने के लिए कोई भी नहीं, यहाँ पर अकेले हैं, वो लगे हुए अकेले भाई। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, जाए शादी करे घर बसाए, लेकिन यहाँ पर ना ठोर ना ठिकाना। क्यों कर रहे हैं व्यक्ति यहाँ पर ही? क्यों सदा योगी प्रभु यहाँ धारवाड़ में लगे हुए हैं? क्यों भाई, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं भक्त लोग? क्यों सेंटर खोलते हैं? क्यों? साधु संग देने के लिए। बस कस्टमर केयर सेंटर कहाँ खोलेगा? जहां पर कस्टमर हैं, और कस्टमर का मतलब होता है जब कष्ट में मर रहे हैं उनको बोलते हैं कष्ट मर। तो कस्टमर केयर सेंटर कहाँ खोलेगा? जहां लोग कष्ट में मर रहे हैं ना, वही तो खोलेंगे। इसलिए इस्कॉन के टेंपल खोलते हैं, बड़े बड़े टेंपल। इसके लिए इतनी मेहनत, पहले जमीन खरीदो, उसका फिर नक्शा पास कराओ, फिर वहाँ मंदिर बनेगा। मंदिर बनाने के लिए फंड रेजिंग करनी पड़ती है, कई लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, उसका फिर मंदिर बनता है, फिर उसको मेंटेनेंस करने का भी अलग खर्चा होता है, प्रसाद का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी का खर्चा, ये वो। इतना कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए? कस्टमर्स केयर सेंटर खोलने के लिए। लोग आएंगे यहाँ, लोग क्या करेंगे? मंदिर में आके क्या करते हैं? साधु संग करते हैं। तो दर्शन करना वो भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है संग करना। क्योंकि दर्शन तो क्या है, दर्शन में देखो कई मंदिर खुले हुए हैं आज, लेकिन मंदिरों के अंदर जान क्यों नहीं है? क्योंकि जान आती है भक्तों का संग करके। यस, भक्तों का संग में आने के बाद पता लगता है कि एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। नहीं तो जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं। जैसे मान लो को ट्रेन में अगर कोई चढ़े, उससे पूछे भाई साहब आप ट्रेन में क्यों चढ़े हैं? सब चढ़े तो हम भी चढ़ गए। तो कहाँ उतरोगे आप? हैं जहां सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे। ये आदमी समझदार है या पागल है? कौन किसने बोला समझदार है भाई? उसके चरण लाओ, चरण सर पे रख लो उसके अपने। ये आदमी पागल है, राइट है ना? उस तरह से अगर को पूछे किसी ये हुगली में या किस धारवाड़ में, किससे पूछो, रैंडमली पूछना, ये तो भैया आप क्यों जी रहे हो? सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। आपको लाइफ में क्या करना है? जो सब कर रहे हैं वही करेंगे हम। तो आदमी समझदार है कि पागल है? रिपीट करो सर, पागल। और इस हिसाब से देखो दुनिया में 99.99% लोग पागल ही हैं। लेकिन पागलों की खास बात क्या होती है? पागल खुद को पागल नहीं मानता। तो हम कैसे पागल? तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हम कैसे पागल? लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें ना, एक्चुअली दुनिया में लोग पागल ही हैं। क्यों जी रहे हैं उनको पता ही नहीं, वो जी रहे वही खाना सोना भोग करना, दैट्स इट। यही खाना सोना भोग करना ही जानवर ज्यादा अच्छा कैसे कर लेता हमारे से। खाने में उसको कभी अपच नहीं होता, वो कभी कायम चूर्ण नहीं खाता, कभी हाजमोला नहीं खाता, कभी उसका एसिडिटी नहीं होती। खाया पचाया निकाला आगे बढ़ा। सोने में कोई दिक्कत नहीं है उसको, कहीं भी सोता है, गलियों में सो जा, कहीं भी सो जा। हमको चाहिए स्लीपर का गद्दा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, सब चाहिए भाई सोने के लिए। फिर भी नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए। फिर खाएंगे एल्फ्रेक्स, खाएंगे दवाइयाँ खाएंगे ताकि रात को नींद आ जाए हमें। अरे बाबा, भोग भी नहीं करवाते। मतलब बच्चे पैदा करने में जानवर हमसे ज्यादा उस्ताद हैं। हर गलियों में उनकी पुश्तें चल रही हैं, इस गली में पुश्तें चल रही है उनकी, इस गली में पुश्तें चल रही होंगी। अरे क्या बात है। और इंसान तो IVF की दुकान में घूम रहा है, हमारा बच्चा नहीं हो रहा जी, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, वो IVF की दुकान में घूम रहा है वो। जीवन के लिए संघर्ष करना, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए MBA करते बेचारे इंसान। और ये जानवर नर्सरी भी नहीं करता। हाथी 50 किलो खाता है, उसकी पत्नी 50 किलो खाती है, 4 बच्चे 25 किलो खाते हैं, 200 किलो खाता है हर रोज। क्या किया उसने? MBA किया IIM अहमदाबाद से। ये रोज 200 किलो है तो MBA करना जरूरी है।
तो ये काम तो वो भी कर लेते हैं, हम क्या करते बाबा। सो मनुष्य जीवन जो है ना बड़ा दुर्लभ है, इसका इसलिए इसका स्पेशल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक बार व्यक्ति ने ना लाइब्रेरी में देखा, उसने वहां पर लिखा था द एड्रेस ऑफ पारसमणि। उसको पता लगा हवाई की बीचेस में वहां पर पारसमणि है, और वो पारसमणि मिल जाएगा ना। पारसमणि जिसको छू लेता है उसको सोना बना देता है, लेकिन पारसमणि जो है दिखता साधारण पत्थर जैसा है। तो पहचाने कैसे? वो हल्का सा वार्म होता है, बाकी पत्थरों के मुकाबले में हल्का सा वार्म होता है। तो वो पहुंच गया, वो कहते हैं अरे वाह यार, तो बहुत सारे पत्थर पड़े, लेकिन अब ये पारसमणि वाला कौन सा है? उसकी निशानी क्या? हल्का सा वो वार्म है। तो इस पहले उठाया, कहता है ये तो नहीं है, तो ठंडा है, समुद्र में फेंका। दूसरा उठाया, ठंडा है भी, फेंका 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 फेंका। ये फेंका फेंका करते करते पारसमणि भी हाथ में आ गया उसके, फेंका, उसको ही फेंक दिया। मोमेंटम में आ गया ना, तो पारसमणि भी आया तो उसको भी फेंक दिया। तो बाकी जितने भी हमारे जीवन होते हैं उसमें भी क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, फेंक का। कॉकरोच का जीवन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, फेंक का। हिरण का जीवन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, फेंक का। शेर का जीवन ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, फेंक का। मनुष्य का जीवन भी आया, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, फेंक का। इसको भी फेंक दिया भाई। तो इसलिए साधु संग करके एक्चुअली जीवन का पर्पस क्लियर होता है, अदरवाइज वी गेट लॉस्ट। जैसे एक समय ऐसा हुआ, शेरनी थी, शेरनी कुछ बच्चे थे, अपने बच्चों के साथ जा रहे थे, तभी ना वहां बड़ा तेज तूफान आया। तेज तूफान की वजह से अब जो बच्चे थे बिछड़ गए। अब एक बच्चा जो था वो बल्कि बिछड़ करके वो हिरणी के ग्रुप में जाके मिल गया। वो उसको लगा शायद यही मेरी मम्मी है। तो हिरण था, हिरणी थी और उसके बच्चे थे, साथ में ये शेरनी का बच्चा भी था। तो एक समय शेरनी देख रहे हिरण और हिरणी के, और हिरणी के बच्चे भी हैं। तो दौड़ा वो, दौड़ी वो शेरनी दौड़ी, तो हिरणी भी दौड़ी, उसके बच्चे भी दौड़े, साथ में ये शेरनी का बच्चा ये भी दौड़ा कि ये मेरी मम्मी गई, मेरे भाई बहन गए। वो शेरनी ने उसको पकड़ लिया, छोड़ दो। अरे तू मेरा बच्चा है। नहीं मम्मी। कहता वो तेरी मम्मी नहीं है, मैं तेरी मम्मी हूँ। नहीं मम्मी तू चली गई। नहीं मम्मी, अरे वो तेरी मम्मी नहीं है, मैं तेरी मम्मी हूँ। उसको लेकर गई नदी में, नदी में शक्ल दिखाई, ये देख हमारी शक्ल मिलती है हमारी, तू मेरा बच्चा है। नहीं तू मेरा बच्चा है, देख आवाज ही मिलती है हमारी। एंड देन वो जो बच्चा था कन्विंस हो गया कि मेरी असली माँ तो ये है। उस तरह we are also lost in this world thinking that maybe we belong to the family of this materialistic world. ना, we belong to family of Krishna. पर ये पर्पस कैसे क्लियर होता है? ये क्लियर होता है when we come to devotees association. स्पिरिचुअल लाइफ की प्रेरणा कैसे आती है? इन डिवोटीज एसोसिएशन। तो इसलिए रेगुलरली डिवोटीज की एसोसिएशन लेना जरूरी है। यस, तो जाके पता लगता है दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, अदरवाइज वी गेट लॉस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड, वी कैन इजीली गेट लॉस्ट। सो डिवोटी एसोसिएशन से स्क्रिप्चर्स भी समझ आते हैं, जीवन में प्रेरणा मिलती है हमको। जैसे आपने देखा ना एस्केप वेलोसिटी होती है फिजिक्स में, सुना आपने? व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है उससे? हाँ, we can escape the gravitational pull. So इस दुनिया के अंदर there is gravitational pull of ignorance. ये gravitational pull है ignorance का। इससे escape करने के लिए हमको क्या चाहिए? escape velocity, और वो आती है devotees association से, भक्तों के संग से। तो हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए? devotees की association लेनी चाहिए। We should regularly come to the center, listen about the Lord. ये करना चाहिए हमको। We should try to bring some regular practices. कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम आते तो सेंटर में आते ना बड़ा अच्छा लगता है, फिर जैसे घर जाते हैं फिर वही पुराने, फिर वापस आए फिर बड़ा अच्छा लगा, यस, फिर वापस गए फिर वही पुराने। We lose all inspiration. तो हमें क्या करना चाहिए? Regularly we should associate with devotees. We should try to bring some regular practice of chanting Hare Krishna every day in our life. ये हमें करना चाहिए। रेगुलरली करेंगे ना, डोज मिलेगी आपको, देन यू फील चार्ज्ड। जैसे फोन होता है ना, फोन को चार्ज करते नहीं करते हम लोग, फोन को चार्ज करते हैं ना, उसी तरह से हमें खुद को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है। एंड दैट हैपेंस व्हेन वी रेगुलरली कम टू द सेंटर, टेक डिवोटी एसोसिएशन। अब आए once in 1 month और once in 2 months,
या कुछ लोग आते हैं जन्माष्टमी आते हैं, भगवान के बोलने के लिए प्रेजेंट सर। तो ये तो बहुत ही खराब अटेंडेंस है भाई। सो डिवोटी संग में आना एंड देन हैविंग सम रेगुलर प्रैक्टिसेस, स्पेशली इफ यू कम फॉर मॉर्निंग आरती, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी मॉर्निंग आरती में आने का मतलब पता है क्या है? मॉर्निंग आरती में आने का मतलब है यू आर कमिंग इन द बेडरूम ऑफ द लॉर्ड। इस आपको सुबह सुबह जब मंगल आरती का समय होता है किसी मंदिर में ना, ज्यादा श्रृंगार वगैरह नहीं होता। क्यों? बिकॉज लॉर्ड इज देयर इन हिज बेडरूम। और बेडरूम हम किसको बुलाते हैं? मेरा बहुत पास का दोस्त होता है ना, उसको बुलाते हैं, आजा यार बाहर वगैरह ड्राइंग रूम में, अंदर आ जाना। और क्या, उसको हम ड्राइंग रूम में अपने बेडरूम में ले आते हैं, उसको मेरा पर्सनल रूम में लेके आते हैं। गेस्ट को कहाँ मिलते हैं? ड्राइंग रूम में। उनको बोलो बाहर वेट करें, हम आ रहे हैं अभी, बिकॉज दे आर गेस्ट। पर जो हमारे अंदर सर्कल के होते हैं उनको कहते हैं अरे अंदर आ जा, मेरे रूम में आ जा, अंदर आ जा। ड्राइंग रूम में बाहर के लोगों के लिए। So in case you want to become dear to the Lord to the extent that you belong to the inner circle of the Lord, तो हमें क्या करना चाहिए? We should try to come for मंगल आरती at least once in a week. Come for मंगल आरती। तो यहाँ पे मंगल आरती वाली प्रैक्टिकल भी है। सुबह सुबह जपा ही होता है, 6:30 बजे मंगल आरती होती है, उसी के लिए आ जाओ। उसके पहले जपा के लिए आओ तो बहुत ही अच्छा है। If you do that, perfect। 4:30 बजे शुरू कर देते हैं यहाँ जपा करना, so जपा भी करिए and then you come to for the class as well। सुनने के लिए आना चाहिए रेगुलरली। तो रेगुलर डोज जो है हमको लेनी चाहिए, सो दैट आवर सोल फील्स नरिश्ड विद भक्ति। ये भी करना चाहिए, हमें सेवा भी करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से। हम आकर के उनको सेवा करें। जो करता है सेवा उसे मिलता है कृपा का मेवा। सेवा करनी चाहिए। यस, मालूम माताएं हैं, दे कैन डू सम काइंड ऑफ कुकिंग, क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी है, दे कैन डू दैट कुकिंग। प्रभुज हैं, दे कैन डू अदर काइंड ऑफ सेवा, जैसे फॉर एग्जांपल से डेकोरेशन, और यू कैन गिव सम डोनेशंस आल्सो। धन देना चाहिए, क्योंकि तन शुद्ध होता है स्नान से, बुद्धि शुद्ध होती है दिव्य ज्ञान से, मन शुद्ध होता है हरि के नाम से, और धन शुद्ध होता है दान से। सो आप ये भी कर सकते हैं, हर महीने 5%, 10% ऑफ योर सैलरी यू कैन फिक्स कि प्रभु जी धर्म की सेवा में हमारी सैलरी का 5%, 10%, हालांकि 50% बताया गया है, पर 50% आप नहीं कर पाओगे। प्रभु जी हमारे बड़े खर्चे हैं, स्मार्टफोन भी होता है, तो बहुत खर्चा होगा हमारा। तो 50 नहीं तो कितना परसेंट दे सकते हैं? 5% एटलीस्ट, 10% एटलीस्ट। ये हमें रेगुलरली देना चाहिए। प्रभु जी आपका प्रसाद का खर्चा होता है, बाकी जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं, तो तन से, मन से और धन से हम सेवा कर सकते हैं भगवान की। तो जो भगवान ने दिया है हमें भगवान को देना चाहिए। आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। आपको धन दिया है, अपना धन दीजिए। आपको स्किल दिया है कुकिंग का, वो दीजिए। लेकिन हमें भगवान को देना चाहिए। जैसे गंगा मैया से लोग लेते ना, जल लेते हैं और बोलते हैं ओम गंगाए नमः। कहते अरे वाह बहुत बदमाशी तू तो बेटा, जल भी लिया गंगा से, गंगा को दे दिया और कहा ओम गंगाए नमः। लेकिन पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? पुण्य मिलता है। इवन दो आया सब कहाँ से? गंगा से ही, और वापस उसको दे दिया गंगा को ही, ओम श्री गंगाए नमः। तो आया सब कुछ कहाँ से है? कृष्ण से। वही हमने वापस दे दिया कृष्ण को। लाभ किसका होता है? हमारा। पुण्य किसको मिलता है? हमको। जबकि आया किससे है? कृष्ण से। तो इसलिए ये जो जीवन है ये वास्तव में प्रेपरेशन है, ये तैयारी है, और ये तैयारी हमें करनी चाहिए कि अगला जीवन हमारा कैसा हो, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। ऐसे एक साम्राज्य था। उस साम्राज्य में ये था कि ना, राजा बनेगा तो व्यक्ति 1 साल के लिए बनेगा, और 1 साल राजा बनने के बाद उसको एक टापू में भेजा जाएगा, बोट में बिठा करके टापू में लेकर जाएंगे, और वहां पर उसको शेर, चीता इत्यादि खाएंगे उसको। पर राजा रहेगा वो 1 साल के लिए। कई राजा आते थे, मजा किया उसने, राजा बन के भोग वगैरह किया, खाए पिए। लेकिन जैसे ही अब 3 महीने बाकी, तो लोग बोलते थे भैया जी खूब भोग हो गए, 3 महीने बाकी है बस, अब 1 महीना बाकी है बस। और जैसे समय पास आता रहता था, उसको डिप्रेशन आता था, अरे भाई अब मेरे को टापू में लेकर के जाएंगे और मेरे को चीर फाड़ करके जानवर खाएंगे। अरे ऐसे कई राजा हुए, कहीं गए, चीरे फटे, मर गए बेचारे। वो एक राजा आया, वो बड़ा कूल था। उसको बोला भाई साहब 3 महीने रह गए। कहता हाँ 3 महीने रह गए भाई। भाई साहब 2 महीने रह गए अब, या 2 महीने रह गए अब तो। अरे भैया अब तो तेरे 11 महीने बीत गए हैं, 1 महीने बाद तेरे को भेज देंगे, पता है ना? या
1 महीना रह गया है भैया जी, 1 हफ्ता रह गया, अगले हफ्ते आपको पता है ना क्या होने वाला है? क्या 1 हफ्ता रह गया है, अब 1 ही दिन बाकी। कहता है भाई तेरा कल, तेरे को पता है ना, तेरे को टापू भेजने वाले तेरे को, या 1 ही दिन रह गया। तो भैया जी तू कौन सा राजा है यार, तेरे पहले कई सारे राजा है, वो बेचारे डिप्रेशन की गोली खा रहे होते थे कि अब तो भाई अब तो जाना ही, अब तो चीरे चीरे फटेंगे मरेंगे हम, तेरे को क्यों नहीं चिंता हो रही भाई? तो उसने बोला कि जब तक मैं यहाँ पर था, इस साम्राज्य का राजा था, इन बिटवीन मैंने क्या किया, मैंने जो वाला टापू था ना, उसमें जितने शेर चीते इत्यादि थे उनको कहीं और भिजवा दिया, और वहाँ पर मैंने बिल्डिंग ये वो सब तैयार कर दिया है, मैंने प्रॉपर एक अलग साम्राज्य तैयार कर लिया है। तो मैंने ये साम्राज्य छोड़ करके आई विल शिफ्ट टू दैट साम्राज्य एंड आई विल बी किंग देयर, मैं वहाँ का राजा बनूंगा, और वहाँ 1 साल के लिए नहीं, हमेशा का राजा। अरे तू तो बहुत समझदार निकला रे। तो हमारा ये जीवन है, हम आज की जिंदगी के राजा हैं। हमारी अगला जीवन जो है वो है टापू। अगर हम उसकी तैयारी नहीं करते तो फिर तो यमराज जी और यमदूत हमारा जो हाल मचाएंगे, ओए होए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम अगले जीवन की तैयारी करते हैं इस जीवन के अंदर, तो फिर वो बोलेगा भी नहीं, अरे तेरी मृत्यु पास आ रही, कहते हाँ अरे या मुझे पता उसके बाद कहाँ जाना है मेरे को, यस मैं तैयारी कर ली है, इसी जन्म में तैयारी कर रहा हूँ उसकी, यस। सो वी आर टू प्रिपेयर नाउ फॉर द नेक्स्ट लाइफ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है जी, हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? हाँ यस, वो पीछे यस। हाँ 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 देखो, तैरना सीखना होता है तो पानी में उतरना ही पड़ता है। और आपको डिवोटी के संग में रहना सीखना है तो आपको डिवोटी के संग में रहना ही पड़ेगा। गलतियां होंगी, बिल्कुल हो सकता है। समटाइम्स देयर इज प्रोवोकेटिंग सिचुएशन एंड देन वी से हे, देयर आर प्रोवोकिंग सिचुएशंस, यस। ए डिवोटी ने बोला प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद, टू बी विद डिवोटीज इज सच एन ऑस्टेरिटी। प्रभुपाद ने कहा दैट्स द ओनली ऑस्टेरिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ, यस। और थोड़ी बहुत देखो ऑस्टेरिटी होनी बनती भी है। एक डिवोटी ने बोला प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद स्पिरिचुअल लाइफ इज सो डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद जी ने बोला यस, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। सो विच वन यू वांट, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल? तो डिवोटी ने बोला डिफिकल्ट ही अच्छी है, या। तो इसीलिए थोड़ी बहुत ऐसा रहता है, बट यस वी ऐसे नहीं कि डिवोटी साथ रहेंगे तो अपराध हो जाएगा, तो फिर हम लेट्स गो टू देन साउथ पोल, लेट्स गो टू अंटार्कटिका, देन देयर इज नो वैष्णव अपराध। और वैष्णव है ही नहीं कोई, ओनली पेंगुइन्स एंड पोलर बियर्स, छोड़ दें। सो हियर यू वुड प्रैक्टिस humbleness like a blade of grass, tolerance like a tree, desiring no respect for oneself and giving respect to everyone. In this state of mind we can be offenseless in bhakti. पर ये आने में थोड़ा टाइम लगता है, पर करते करते ही आता है। गलती होगी, माफी मांगेंगे, फिर गलती होगी, फिर माफी मांगेंगे। पर जब तक लोअर मोड्स रहते हैं तब तक ऑफेंसेस के चांसेस रहते हैं, बट ग्रेजुअली वी कैन ओवरकम इट। ठीक है जी। More somebody becomes mature in bhakti, then devotees are friends. और friends से कोई पंगा वंगा होता ही नहीं, because we are friends. That's it. Do you have advice for the other side also, Prabhu? Which side? Whom we are trying to adjust, because it should be both sides, na? Yeah, both sides. ये दोनों sides के लिए था instruction. जैसा होता क्या है, कई बार ना बहुत सारे पथरीले नोकीले पत्थर क्या करते हैं, बोरी में डाल दिए जाते हैं। बोरी में डालकर उनको हिलाते हैं, चुक 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 चुक, और उनको हिलाने के बाद सबके सब चिकने होकर बाहर आते हैं। अरे वाह, स्मूथ पेबल, ये कैसे हुए? अंदर सबने एक दूसरे के साथ चक 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 किया है, तो सारे के सारे चिकने होकर ही बाहर आते हैं। उस तरह से हम भी एक जगह इकट्ठे होते हैं, सब एक दूसरे के साथ चुक 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 कर रहे हैं। किसने इसका दिल दुखाया, जिसने उसका दिल दिखाया, इसने उसकी बात कर दी, इसने उसकी बात कर दी, चिक चुक 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 चुक। फिर जीवन के अंत में सबके सब एकदम स्मूथ होकर ही गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो जरूरी है, यस, इट्स ओके। तो दोनों साइड के लिए एवरीवन हैज टू बी कोऑपरेटिव, अकोमोडेटिव, फॉरगिविंग। ये तो गाड़ी चलती नहीं है। हाँ जी।
वेयर अच्छा वो JNU, एक्चुअली JNU में ना ऐसा कुछ बचा नहीं है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय नाउ बाय RSS एंड BJP, कुछ नहीं बचा है JNU के अंदर. So that's why people now have such slogans, but even now education about Brahminical culture, real Brahminical culture is also happening very nicely by so many different forums. जैसे हम लोग भी कर ही रहे हैं, शिक्षार्थम चैनल है और कई चैनल्स हैं, they are explaining what is real Brahminical culture. So इसलिए अब ये जो रह गया ना ब्राह्मण ये वो that it has really come down. Yeah. एक टाइम था ये छुआछूत, ऊंची जाति नीची जाति, शूद्र कहीं का, इसको मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे, शूद्र कहीं का ना हो. तो एक समय ये गंदगी थी. दिस वाज रियली अ डिसीज इन सनातन धर्म. उस वजह से कई लोग कन्वर्ट भी हुए, इस्लाम में गए, क्रिश्चियनिटी में गए. कहता है यू वांट अ डिग्निफाइड लाइफ, लीव हिंदुइज्म, यस, कम टू क्रिश्चियनिटी, कम टू इस्लाम. एक बार ऐसे व्यक्ति था, उसको पंडित मना करता, ब्राह्मण करता था, चलो यहाँ से, शूद्र कहीं का ना हो. तो उसका बड़ा मन करता था मैं अंदर जाऊं, मैं दर्शन करूं. तो बड़ा दुखी था, रात को रोता रहा. कहता प्रभु प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे ब्राह्मण अंदर नहीं आने देता मंदिर के. तो भगवान सपने में आए. भगवान ने कहा क्या तेरे को अंदर एंट्री नहीं मिलती, इससे तो बहुत दुखी. कहता हाँ प्रभु. कहता अरे तेरे को एंट्री मना नहीं है, मेरे को भी एंट्री मना है वहां पर, मैं भी नहीं हूँ वहां पर. वो अकेला ब्राह्मण ही रहता है वहां पर, मैं भी नहीं रहता वहां पर. सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने क्या किया ना, हिंदुओं को बहुत बदनाम किया है इन लोगों ने, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं. तो इसकी वजह से कई लोग हैं, दे लेफ्ट सनातन धर्म, दे लेफ्ट आवर फैमिली. पर गलती हमारी है लेकिन इसके अंदर, सनातन धर्म में सो कॉल्ड ब्राह्मण्स की है. तो इसलिए जो अगर वो लिखते हुए लीव ब्राह्मण्स एंड ऑल दैट, ये गड़बड़ी तो ब्राह्मणों ने की ना. तो इसलिए शास्त्रों में आता है दैट इन कलयुगा some of the demons would take birth in the Brahmin families. So they did all of this crazy thing. If somebody wants to see Brahminical culture, they should come to ISKCON. In ISKCON there is no such thing, ऊंची जाति नीची जाति, शूद्र ये वो का. हमारे यहाँ तो चंडाल जो चाइना के लोग हैं वो भी दे आर वैष्णवास, जो सुअर का, कान खजूरे का, सांप का, बिच्छू का, सबका मांस खाते हैं. बंदर का तो खून स्टॉल आके पीते हैं, उसका सर हटाया, स्टॉल खाया. चाइना. पर ये लोग भी आज वैष्णविज्म में आ रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं. नाइस. सो somebody wants to see a real Sanatan Dharma, a real Brahminical culture, they should come to see. They should come to ISKCON and see the real culture. Yeah? पर now JNU कुछ नहीं बचा. JNU में it is going to be Vedic University, spiritual university. खुल रहा है अब. Yes. Ah, yes. We have 4 years, 20 years, and this 4 years happened. This process happened many times before and after also. Yeah, it's a cyclic thing. सत्युगा, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सत्युग, त्रेता, द्वापर. Yes. Why Krishna is doing like this? What does he want? Actually, Why we are suffering? okay, these are two different things. Why Krishna is doing this? Everything by nature in the material world tends to deteriorate. So dharma deteriorates. When it completely deteriorates, again Krishna re-establishes Satyuga. फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको नीचे लेके जाते हैं. फिर भगवान कहते हैं बदमाश, फिर नीचे ले आया धर्म को, फिर ऊपर लेके आते हैं वो सतयुग में. तो इस तरह से this cycle goes on. Krishna establishes dharma. Manushya, the living entities, we keep bringing it down. That's why it is going on like this. Isn't there any better way of doing it? Rather than doing this, then isn't there any better way? There is no better way. This is the better and this is butter. Because we are bitter. That's why. Why can't he give directly the knowledge? He gives knowledge, but then we forget knowledge. He keeps giving knowledge. That's why he sends messengers, preachers, prophets, scriptures. He himself comes in his expansions, plenary expansions, empowered incarnations, vibhutis. Keep coming regularly. भगवान भी जिद्दी है हमारा उद्धार करने में, हम भी जिद्दी हैं अपना बेड़ा गर्क मानने में. तो दोनों लगे रहते हैं. So instead of coming again, why don't he give them that much memory? He has given memory. Actually, when Krishna in 11th canto this comes in Bhagavatam, he created 80 lakh species of life. लेकिन किसी में ना सब में भोग मिलती है बस. So then Lord at the end created a species which
looked like him. That's human form of life. तो भगवान ने आखिर में फिर ये मनुष्य जीवन बनाया है. उसमें विवेक बुद्धि भी दी, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्टेम्पलेशन, ये सब दिया उसके अंदर. चलो ये लोग तो आ जाएंगे कम से कम. वो 80 लाख वालों का हिसाब किताब सिर्फ भोग करने में निकल जाएंगे बेचारे. तो भगवान ने फिर अपने जैसी दिखने वाली ये फॉर्म बनाई. गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, राइट. तो भगवान ने दिया हमको, लेकिन हम उसका मिसयूज कर रहे होते हैं. इंटेलिजेंस है, यस, पीपल हैव इंटेलिजेंस, बट दे मिसयूज इट. Okay, last question. Yes. The purpose of life. The purpose of life is to love God, and that's why the purpose of life is to be happy. The purpose of life is to be happy. But how to be happy? By loving God. जैसे चिंगारी होती है ना, when the spark is near the fire, it illuminates. When the spark goes away from the fire, then it extinguishes, or it is covered by smoke. ये जब चिंगारी पास रहती है तो स्मोक इसको कवर नहीं कर पाता, क्योंकि आग के पास है ना, इसीलिए. तो इस तरह से हम भी जितना भगवान के नजदीक रहते हैं, स्मोक कैनॉट कवर, माया कैनॉट कवर अस. और जितना हम भगवान से दूर जाते हैं, माया कैन कवर अस. सो हमें भगवान के नजदीक रहने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए. देन माया कैनॉट कवर. विच इज मोर पावरफुल, माया और कृष्ण प्रेम? कृष्ण प्रेम. सो वी नीड टू हैव लव फॉर गॉड, एंड देन वी आर अवे फ्रॉम सफरिंग्स naturally. More we are away from the Lord, more we are near the sufferings. हाँ जी, yes. बहुत लंबी कथा है वो तो, हालांकि आप पढ़ सकते हो. सॉल्टेड ब्रेड आप पढ़ें, डबल रोटी पढ़ें, मिल जाएगा अमेजोन में, मिल जाएगा आपको. अमेजोन में सब मिलता है. अमेजोन मतलब अमेजोन. और भी सवाल माताओं में किसी का सब कोई सवाल? हाँ, ये सवाल दीजिए. यस. Yeah. But some of the translations they are very generic. Like for example about the mind. Like Mayavadis and Bhaktas, we have same translation. Say Chanchalam hi mana Krishna Pramati Balabhadranam. Same translation. Yeah. Abhyasentu Bhante Viragyan Chugirasya. Same translation. So they would take some of the generic verses and mota they are only when it comes to the Lord. There only Mayavadi, Chayavadi, Kayavadi, Ugravadis they make mess. Otherwise, many of the translation we go same. Only story after liberation they mess up. Before liberation we go together. Mayavadis and Advaitwadis and we devotees, we go together. Sansar, Janamitu Jaravadi, Dukha Doshanu Darshanam, same. Only Mukti and afterwards, then they mess up. We go to Vaikuntha, Guru Vrindavan. Yeah. I regularly take Glucon-D. ये जान में जान डाले पीते ही. It is all mercy of Krishna. वो गाना आया था ना बहुत पहले. जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना. तो जितनी चाबी भरी है श्याम जी ने, तो खिलौना चलता रहेगा. चाबी बंद, खिलौना बंद. जैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, करने वाले प्रभु ही होते हैं. करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस वही है. That's it. So he is the one. He empowers and we are able to do. So I do it without any strain. मुझे ऐसा नहीं होता मैं बहुत अंदर से टूट चुका होता हूँ, मैं अपने को खींच रहा होता हूँ तो कृष्णा ना. So it is all mercy coming from Krishna. और ऐसे नहीं मैं गले का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं ऐसे मसाज करता हूँ, कुछ नहीं करता मैं. Only message, no massage. So Krishna is taking care actually. Yeah. All right, devotees, thank you very much. Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Okay, so regularly keep associating with devotees. Bring some regular sadhana in terms of chanting Hare Krishna, and you can contribute in terms of services in the center. Hare Krishna.